Good morning, students. Our chapter is going on life process in which we are doing nutrition partition. Nutrition, we know the taking of food by an organism is called nutrition. Plants can make their food by their own by the process of photosynthesis. That's why they are called autotrophs, and their mode of nutrition is autotrophic mode of nutrition. Today we have to start with activity 6.1. In this activity, we have to find out that chlorophyll is essential for the photosynthesis. Take a potted plant with variegated leaves. Variegated leaves are those leaves in which some part of the leaf is green but some part of the leaf is white. Okay, the leaf will not be fully green, there will be some part which will be white. For example, money plant or crotons. Keep the plant in a dark room for 3 days so that all the starch get used up. Now keep the plant in sunlight for about 6 hours. Pluck a leaf from the plant, mark the green areas in it and trace them on a sheet of paper. Dip the leaf in a boiling water for a few minutes. After this, immerse it in a beaker containing alcohol. Carefully place the above beaker in a water bath and heat till the alcohol begins to boil. What happens to the color of the leaf? What is the color of the solution? Now dip the leaf in a dilute solution of iodine for a few minutes. Take out the leaf and rinse off the iodine solution. Observe the color of the leaf and compare this with the tracing of the leaf done in beginning. What can you conclude about the presence of starch in various areas of leaf? Now listen what we are doing, beta. In the first step, we are taking a variegated leaf in which the leaf is not fully green, it will be somehow white. Put will the plant in the dark room because जो हमारा प्लांट होता है उसके अंदर स्टार्च होती है, हमने ये बात कर चुके हैं. जो जब हम उस प्लांट को डार्क में रखेंगे तो होल स्टार्च विल बी यूज्ड, मतलब प्लांट के पास कुछ भी फूड नहीं बचेगा. उसके बाद प्लांट को फिर से सनलाइट में रखा जाएगा 6 to 7 आवर्स के लिए, सो दैट द प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके फिर से स्टार्च की फॉर्मेशन कर सके. अब हमने क्या किया, प्लांट का जो ग्रीन पार्ट था या लीफ का जो ग्रीन पार्ट था उसको मार्क करके उसको बॉइलिंग वाटर में रखा और फिर उसको अल्कोहल में डाल दिया. अल्कोहल में डालने से क्या होता है, लीफ का जो ग्रीन कलर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, यानी कि लीफ कलरलेस हो जाती है. बॉइलिंग अल्कोहल में पुटअप करने से जो लीफ है वो बिल्कुल कलरलेस हो जाती है, उसका ग्रीन पार्ट बिल्कुल फिनिश हो जाता है. अब उस कलरलेस लीफ को हमने आयोडीन सोल्यूशन में पुट किया. जैसे ही हमने उसमें आयोडीन सोल्यूशन पुटअप किया तो हमने ये देखा कि जो पार्ट ग्रीन था, लीफ का जो पार्ट पहले ग्रीन था वो तो ब्लू में कन्वर्ट हो गया. जैसे यहाँ पर देखिए आप, इन दिस डायग्राम यू कैन सी कि जो लीफ का ग्रीन पार्ट था ये वाला वो तो अब ब्लू हो गया, लेकिन जो वाइट पार्ट था वो वाइट ही पड़ा है. इसीलिए बिकॉज जो ग्रीन पार्ट था प्लांट का सिर्फ उसी में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ, जो वाइट पार्ट था उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हुआ, बिकॉज द वाइट पार्ट ऑफ द लीफ does not contain chlorophyll. So we can say chlorophyll is essential for the photosynthesis. Okay. Now let us study how the plants obtain carbon dioxide. In class 9th we have talked about stomata, which are the tiny pores present on the surface of leaves. Please underline. Stomata are the tiny pores which are present on the surface of leaf. Massive amount of gaseous exchange take place in the leaf through these pores for the purpose of photosynthesis. But it is important to note here, exchange of gas occur across the surface of stem, root and leaf as well. Since large amount of water can also be lost through these stomata, the plant closes the pore when it does not need carbon dioxide for photosynthesis. The opening and closing of the pore is a function of the guard cell. Please underline. हाँ जी स्टूडेंट्स,
ये हमारी स्टोमाटा है। प्लांट्स का जो लीव वाला पोर्शन होता है उसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इनको बोलते हैं स्टोमाटा। और इन पोर को ओपन और क्लोज करने का काम कौन करता है? इनके चारों तरफ बीन शेप या किडनी शेप की 2 सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं गार्ड सेल। इसका नाम क्या है? गार्ड सेल। ये जो गार्ड सेल होती है इस स्टोमाटा को ओपन और क्लोज करने का काम करती है। जब ये गार्ड सेल क्या होंगी? श्रिंक होंगी, तब तो स्टोमाटा क्या हो जाएगा? क्लोज। लेकिन जब ये स्वेलो हो जाएंगी तब स्टोमाटा ओपन हो जाएगा। बिकॉज जब गैसियस एक्सचेंज होता है तो उस टाइम पे प्लांट बहुत सारी अमाउंट ऑफ वाटर को भी क्या करता है? लॉस करता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस बाय विच द स्टोमाटा और लीफ ऑफ द प्लांट कैन लूज द वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, तो इसीलिए जो गार्ड सेल है वो ओपनिंग और क्लोजिंग को फंक्शनिंग करते हैं स्टोमाटा की। अब स्टोमाटा से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। अभी हमारे पास यही क्वेश्चन आया था कि हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम आंसर क्या देंगे कि प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड बाय द pores which are present on the surface of leaf. They are named as stomata. When the pore will be opened, the gaseous exchange will be take place. कार्बन डाइऑक्साइड को वो इन कर लेता है और आफ्टर द फोटोसिंथेसिस जो ऑक्सीजन गैस बनती है, फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है उसको प्लांट से आउट करने का काम भी कौन करता है? स्टोमाटा करता है। The guard cells swell when water flows into them, causing the stomatal pore to open. Similarly, the pore closes if the guard cell shrink. वही बात है जो मैंने आपको बताई थी। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, गार्ड सेल वाला, पेपर में आता भी होता है, तो इसको आपने बना के देख लेना। Activity 6.2. Take 2 healthy potted plants which are nearly the same size. Keep them in a dark room for 3 days. Now place each plant on separate glass plates. Place a watch glass containing potassium hydroxide by the side of one of plants. Potassium hydroxide is used to absorb carbon dioxide. Cover both plants with separate bowl jars as shown in figure 6.4. Use Vaseline to seal the bottom of the jar to glass plate so that setup is airtight. Keep the plant in sunlight for about 2 hours. Pluck a leaf from each plant and check the presence of starch. Do both the leaves show the presence of same amount of starch? Can you conclude from this activity? हाँ जी students, listen to me now. In this activity what we have to show कि carbon dioxide is important for photosynthesis. In activity what are they doing? They are taking potassium hydroxide and covering the plant with a bell jar. अब इसको इससे कवर करके ये क्या करना चाहते हैं कि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसके अंदर प्रेजेंट है KOH, ये क्या करेगा? इस लीफ की सारी CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर ये सारी CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके बाद जब प्लांट को वापस फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट में रखा जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की एब्सेंस में प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा। बट इन द सेकेंड डायग्राम दे हैव नॉट टेकन KOH, तो उसकी वजह से इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहेगी और इस प्लांट का फोटोसिंथेसिस होगा। और जब हम इनकी लीव्स को चेक करेंगे आयोडीन सोल्यूशन से तो हम ये देखेंगे कि जो ए वाली लीफ होगी, ए वाली लीफ के अंदर स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन बी वाली लीफ में स्टार्च प्रेजेंट होगा। इसका रीज़न यही है क्योंकि इसके अंदर CO2 नहीं थी। ए वाले डायग्राम में CO2 नहीं बची क्योंकि KOH ने सारी CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन बी वाले में CO2 इज़ लेफ्ट,
बिकॉज उसमें कुछ भी हमने पुटअप नहीं किया था CO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए. सो वी कैन से कि कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो इसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. Based on the two activities performed above, can we design an experiment to demonstrate that sunlight is essential for photosynthesis? So far, we have talked about how autotrophs meet their energy requirement, but also they need raw material for building their body. Water used in photosynthesis is taken up from the soil by the roots in terrestrial plants. Please underline. कि वाटर भी तो फोटोसिंथेसिस में नेसेसरी है. उसको कहाँ से लिया जाता है? रूट से लिया जाता है. और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ली जाती है? एटमॉस्फेयर से. क्लोरोफिल तो प्लांट्स के पास खुद ही होती है और सनलाइट की प्रेजेंस में वो रिएक्शन हो जाती है. अदर मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल. नाइट्रोजन इज इसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड. क्योंकि जो प्लांट है उनको नाइट्रोजनस कंपाउंड की ज़रूरत होती है बहुत सारे प्रोटीन का मैन्युफैक्चर करने के लिए. दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, जैसे कि NO2, N2O, NO. ये सारे कंपाउंड्स होते हैं नाइट्रोजन के जिनको प्लांट्स यूज़अप करते हैं और उनको एटमॉस्फेयर से लेते हैं. और इट इज़ टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. हमारी जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें 78% नाइट्रोजन होती है, लेकिन जो प्लांट है वो डायरेक्टली उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते. तो प्लांट्स हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनका नेम होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं? उस नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि NO2, NO, N2O. ठीक है, इन सब में कन्वर्ट करने के बाद फिर प्लांट उस नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और अपनी बॉडी के लिए और प्रोटीन्स की मैन्युफैक्चर के लिए यूज़ कर लेता है. ठीक है. हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट. द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन differs depending on the type and availability of food material as well as how it is obtained by organism. heterotrophic nutrition वो क्या है कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड होगा. यू कैन राइट डाउन ऑल्सो कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which the organisms depend on other for their food is called heterotrophic mode of nutrition, and the organism which follow this mode are called heterotrophs. ठीक है, इसको आप अपनी बुक में मेंशन कर लो डेफिनेशन को. The form of nutrition differ depending on the type and availability of food material as well as how it is obtained by organism. For example, whether the food source is stationary or mobile would allow the differences is how the food is accessed and what is the nutritive apparatus used by a cow and a lion. There is a range of strategies by the food is taken and used by the organism. Some organisms break down the food material outside the body and then absorb it. Example, fungi and bread mold, yeast, mushroom. Other take in whole material and break it down inside their bodies. What can be functioning? Some other organisms derive nutrition from plant and animal without killing them. This parasitic nutritive strategy is used by a wide variety of organisms like cascata, ticks, lice, leeches and tapeworms. Listen, now heterotrophic mode of nutrition जो है उसके भी आगे बहुत सारे टाइप्स होते हैं. जैसे इन्होंने बताया कि देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड.
तो उसमें भी ये चीज़ होती है कि कुछ लोग तो क्या करते हैं, डेड प्लांट और एनिमल्स को ऊपर फीड करते हैं, लेकिन कुछ फीड करते हैं विदाउट किलिंग दैम, कुछ फीड करते हैं ओनली डेड और डिकेइंग मैटर पे, या कुछ क्या फीड करते हैं कॉम्प्लेक्स मैटर को टेक करके उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली जो हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो 3 टाइप्स का होता है। प्लीज़ राइट डाउन। द हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 saprotrophic, the number 1 is saprotrophic। saprotrophic न्यूट्रिशन, इसको सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। जो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है उसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करता है। डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करने की वजह से उसको बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स क्या करते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आ गया हमारे पास मशरूम, फंजाई, यीस्ट। यानी कि यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट वाली लाइन थी कि देयर इज़ अ रेंज ऑफ स्ट्रेटजी बाय विच द फूड इज टेकन यूज्ड अप बाय ऑर्गेनिज्म, सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। एग्जाम्पल आ गया फंजाई, ब्रेड मोल्ड, यीस्ट, मशरूम। ये वाला जो न्यूट्रिशन है ये कौन सा न्यूट्रिशन है, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। राइट डाउन कर लीजिए अपनी बुक्स में कि ये कौन सा न्यूट्रिशन है, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। उसके बाद नंबर 2 आता है नंबर 2 पे जो न्यूट्रिशन आता है वो आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ये क्या करते हैं, इनटेक ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड एंड कन्वर्टिंग देन इनटू स्मॉलर पार्ट। अब जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को लेते हैं, फिर उसकी बॉडी में जाके वो सारा एब्जॉर्ब होता है, वो डाइजेस्ट होता है, फिर वो स्मॉल पार्ट में टूट करके एब्जॉर्ब किया जाता है, और जो एक्स्ट्रा अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बॉडी से आउट कर दिया जाता है। तो हम कौन सा न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, होलोजोइक। कैट हो गया, डॉग है, डियर है, टाइगर है, लॉयन, जिराफ, ह्यूमन बीइंग, फ्रॉग, ये सभी कौन सा न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अदर टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक डाउन इनसाइड देयर बॉडीज। वट कैन बी टेकन एंड ब्रोक डाउन डिपेंड ऑन द बॉडी डिज़ाइन एंड फंक्शनिंग। ये कौन सा न्यूट्रिशन है, होलोजोइक न्यूट्रिशन है। Okay students, in this nutrition the organism will take complex food and they will convert it into smaller parts. Understood? Now come to the third nutrition, that is parasitic nutrition. Parasitic nutrition. अब अगर पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन दें तो अगर हम बात करते हैं मॉस्किटोज़ की, मॉस्किटोज़ क्या करते हैं, हमारी बॉडी के ऊपर फीड करते हैं, लेकिन क्या वो हमें किल करते हैं, नहीं करते। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में वो ऑर्गेनिज्म आएंगे जो किसी भी होस्ट के ऊपर, होस्ट कोई ऑर्गेनिज्म है जिस पे वो फीड करते हैं। जब कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है विदाउट किलिंग दैम, तो उसे कौन सा न्यूट्रिशन बोलते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। और उन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मॉस्किटोज़, मॉस्किटोज़ हमें बिना किल किए हम पे क्या करते हैं बेटा, फीड करते हैं, इसीलिए हम पे वो फीड करते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, हमें क्या बोलेंगे, होस्ट बोलेंगे, और जो वो फीड कर रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, पैरासाइट्स। अंडरलाइन कर लो जैसे यहाँ से, some other organism derive nutrition from plant and animal without killing them. Parasitic nutritive strategy is used by a wide variety of organism. Like examples are given. ठीक है, तो हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कितने टाइप का था, 3 टाइप का। फर्स्ट सैप्रोट्रॉफिक, सेकेंड होलोजोइक, थर्ड है पैरासाइटिक। सैप्रोट्रॉफिक में डेड और डिकेइंग मैटर के पे ऊपर, फॉर एग्जांपल फंजाई। होलोजोइक में कॉम्प्लेक्स फूड को इंटेक करके उसको बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन करके एब्जॉर्ब करना, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग। पैरासाइटिक में किसी पर्सन को बिना किल किए या किसी ऑर्गेनिज्म को बिना किल करे उसके ऊपर फीड करना, जैसे कि मॉस्किटोज़।
ओके। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड? Since the food and the way it is obtained differ, the digestive system is different in various organisms. In single-celled organism, the food may be taken in the entire surface, but as the complexity of the organism increases, different parts become specialized to perform different function. For example, amoeba takes food in the using temporary finger-like projection extension of the cell surface, which fuse over the food particle, forming a food vacuole. Inside the food vacuole, complex substances are break down into simpler ones, which then diffuse into cytoplasm. The remaining undigested material is moved to the surface of the cell and thrown out. The paramecium, which is also a unicellular organism, the cell has a definite shape and food is taken at in a specific spot. Food is moved to the spot by the movement of cilia which cover the entire surface of the cell. हाँ जी स्टूडेंट्स, अब वो बात कर रहा है कि जो हिट्रोट्रॉफ्स हैं वो अपना फूड लेते कैसे हैं, कैसे वो फूड ऑब्टेन करते हैं। तो उनके फूड ऑब्टेन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अब हमें पता है 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होती है यूनिसेलुलर और एक होती है मल्टीसेलुलर। अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल में जैसे हम अमीबा की बात करें तो अमीबा की ये शेप है। अमीबा एक सिंगल सेलुलर या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब अमीबा क्या करता है बेटा, अमीबा के पास जब फूड आता है तो अमीबा की सरफेस क्या करती है, या जो अमीबा की सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये इस तरीके के स्ट्रक्चर बना लेती है, इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। हाँ जी, अमीबा के पास जब फूड आता है तो अमीबा की स्ट्रक्चर के ऊपर इस तरीके से एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। ये स्यूडोपोडिया क्या करता है, अब यहाँ पर फूड पड़ा है, ये फूड पड़ा है, अब ये स्यूडोपोडिया क्या करता है, फूड को इनटेक करता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसका, इंजेक्शन करना। इंजेक्शन का मतलब फूड को इनटेक करना। स्यूडोपोडिया की हेल्प से अमीबा के अंदर फूड आ गया, उसके बाद अमीबा क्या करता है, इस फूड का डाइजेशन करता है। डाइजेशन में क्या होता है, ब्रेकिंग करके इस फूड को छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करके और उसको डाइजेस्ट करना। डाइजेस्ट करने के बाद जो फूड में मेन चीज़ें हैं उनको अमीबा क्या करता है, अपने साइटोप्लाज्म के अंदर एब्जॉर्प्शन कर लेता है, और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है उसको अपनी बॉडी से क्या कर देता है, वापस आउट कर देता है। यानी कि अमीबा एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होने की वजह से उसकी ये सिंगल बॉडी ही सारा का सारा वर्क करती है न्यूट्रिशन का। अंडरस्टूड? किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए हमेशा न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स रहते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल है, चाहे वो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब न्यूट्रिशन करेगा तो न्यूट्रिशन के लिए हमेशा 5 स्टेप होंगे। फर्स्ट स्टेप होगा इंजेक्शन, सेकंड स्टेप होगा डाइजेशन, थर्ड स्टेप होगा एब्जॉर्प्शन, फोर्थ स्टेप होगा एसिमिलेशन, फिफ्थ स्टेप होगा इजेशन। इंजेशन में क्या होता है कि जो सबसे पहले फूड को अपनी बॉडी में इनटेक करना, वो होता है इंजेशन। उसके बाद जो फूड बॉडी में गया उसको स्मॉलर पार्ट्स में तोड़ना, उसको बोलते हैं डाइजेशन। थर्ड पार्ट, जो स्मॉलर पार्ट्स में फूड ब्रेक डाउन हुआ उसको पूरी बॉडी में पूरी हर सेल तक एब्जॉर्ब कराना, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। फोर्थ, जो फूड हमने एब्जॉर्ब किया उसको एनर्जी बनाने के लिए यूज़ अप करना, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। और जो अनडाइजेस्टेड फूड था उसको बॉडी से वापस बाहर निकालना, उसको बोलते हैं इजेशन। ठीक है, चाहे अमीबा है वो भी ये 5 प्रोसेस फॉलो करता है। इंजेशन किसकी हेल्प से होता है, स्यूडोपोडिया की हेल्प से, जो मैंने अभी आपको बताया। फिर उसकी बॉडी क्या करती है, डाइजेशन करती है, फिर एब्जॉर्प्शन करके फूड को
पूरी साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्प्शन होता है, फिर उसको एसिमिलेशन यानी कि उस एनर्जी को यूज़अप करके अमीबा बड़ा हो जाता है, ग्रोथ हो जाती है अमीबा की। नेक्स्ट इजेशन की अमीबा क्या करता है, उसको आउट ऑफ द बॉडी करता है अनडाइजेस्टेड फूड को। तो इस तरह से अमीबा क्या करता है, न्यूट्रिशन करता है सिंगल सेल होने के बावजूद। पैरामीशियम भी एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये भी इसी तरीके से सारे स्टेप्स को फॉलो करता है। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डूइंग ओनली दिस मच टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ दिस तो you can ask me personally. Thank you. Have a nice day.